Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I hope you guys are doing well. So we are starting chapter 3 of circuits and electronics, and today topic that we are going to discuss is nodal analysis. So there are certain techniques that are used to solve the circuit, and we can easily say that it is used to analyze the circuit parameters. By analysis, we mean that if we have any circuit and it has a combination of number of resistors that can be connected in series, that can be connected in parallel, that can be connected neither in series nor in parallel. They could have a current sources, they could have the voltage sources that can be dependent voltage or current sources, and that can be independent voltage and current sources. Whatever the scenarios are, we have to analyze that circuit, and in order to analyze that circuit we have to apply different techniques. That could be a nodal analysis, that could be the mesh analysis or the loop analysis, that could be the certain theorems that can be applied across the circuit. Okay, so now we are going to start these analysis techniques that are easily used to analyze any circuit, any electrical circuit. The first technique that we are going to discuss today is nodal analysis technique. This is the chapter 3 of your textbook. And in nodal analysis techniques, what we are going to do, that first of all, we have to select the certain variables. Because this is the analysis of a circuit, we have to apply a technique. And in this technique or in any other techniques, first of all, we have to find the variables. What are the variable in that circuit? And in that case, the variables are the nodal voltages. So first of all, we have to identify how much nodes are present in that circuit, and then we have to identify the variable in that circuit. So because variables are the nodal voltages, so we have to identify the number of nodes present in the circuit. The node voltages are defined with respect to a common point in the circuit. So अब क्वेश्चन ये है कि वो नोड वोल्टेजेस हमारे वेरिएबल्स नोड वोल्टेजेस है. अब नोड वोल्टेजेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट के, एक रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट से जो है वो नोडल वोल्टेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे या डिफाइन कर लेंगे. उनमें से एक नोड इज डिफाइंड एज अ रेफरेंस नोड and all other voltages are defined with respect to that reference node. ठीक है, हमने एक नोड, एक रेफरेंस नोड आइडेंटिफाई करनी है, that is the common point in the circuit, और उसके रिस्पेक्ट से हमने बाकी सारी की सारी नोडल वोल्टेजेस को आइडेंटिफाई करना है. तो रेफरेंस नोड कौन सी नोड होगी? इट इज एक्चुअली कॉल्ड द ग्राउंड नोड बिकॉज इट इज सेड टू बी एट द ग्राउंड पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल. ठीक है, तो जो रेफरेंस नोड हमने सेलेक्ट करनी है वो हमारे पास जीरो पोटेंशियल पे होगी, जहाँ पे सारे के सारे सर्किट एलिमेंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होंगे, उनका कॉमन पॉइंट होगा, और उस ग्राउंड नोड के रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, बाकी सारी की सारी नोडल वोल्टेजेस को सेलेक्ट करना है. In an n node circuit, suppose we have n nodes in circuit, may we have to write n minus 1 linear independent KCL equations. अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन ऑर्डर टू सॉल्व द नोडल एनालिसिस, इन ऑर्डर टू अप्लाई द नोडल एनालिसिस टेक्निक, वी हैव टू राइट केसीएल इक्वेशंस. ठीक है, अब केसीएल भी नोड है कहाँ पे? केसीएल इज द किरचॉफ्स करंट लॉ. Kirchhoff's current law states that current entering in any node must be equals to current leaving through that node. ठीक है, or sum of all the current in that node must be equals to 0. सो इसमें हमने क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है. सो केसीएल इज अप्लाई फॉर द करंट. सो नोडल एनालिसिस में हम बेसिकली करंट की इक्वेशंस लगा के हम क्या कर रहे हैं, सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं. सो अगर हमारे पास एन नोड सर्किट है तो हमारे पास n माइनस 1 लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आएंगी, बिकॉज एक नोड हमारे पास रेफरेंस नोड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 नोड सर्किट में आ रही है, तो वी हैव टू राइट 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, और देन वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशंस. ईदर हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या हम उनका मैट्रिक्स बना के उनको जो है वो सॉल्व करें. वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑल नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ. नोडल एनालिसिस टेक्निक में हमने सबसे पहले, एक तो क्लियर बात है, हमने केसीएल अप्लाई करना होगा. सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्किट में हमने नोड्स आइडेंटिफाई करनी है, हाउ मच नोड्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट. और नोड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड. ठीक है, कि एक हमारे पास रेफरेंस नोड होगी या ग्राउंड नोड होगी जो कि जीरो पोटेंशियल पे, उसके रिस्पेक्ट से हमने सर्किट की बाकी सारी की सारी नोड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है. अब हर नोड के को हमने एक नोड वोल्टेज का जो है वो हर नोड को हमने एक वेरिएबल जो है वो असाइन कर देना है, और वो वेरिएबल हमारे पास नोड वोल्टेज होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नोड्स हैं, तो 1 और 2, तो 1 नोड पे हम उसको वेरिएबल असाइन कर देंगे V1, और नोड 2 को हम वेरिएबल असाइन कर देंगे V2. ठीक है, और ये हमारे पास किसके रिस्पेक्ट से होगा? रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट से.
अब हमने क्या करना है कि अब V1 और V2 हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, अब उसके रिस्पेक्ट से हमने उन नोड्स पे KCL अप्लाई करना है। KCL means that the current entering in any node was equals to current leaving through that node, means हमने उस नोड पे, फॉर एग्जांपल नोड 1 है तो उस पे देखना उसमें कितने करंट एंटर हो रहा है, कितने करंट उस नोड में से लीव कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है, अच्छा अब हम क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल के थ्रू जो है वो हम नोडल एनालिसिस को जो है वो इस सर्किट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, so we have to use nodal analysis technique to find V1 in the circuit। अब हमारे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास जो है वो एक 3 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है, 1 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है, एंड वी हैव 4 रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो V1 है विच इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम, अब हमने क्या करना है, नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है। उस नोडल एनालिसिस के थ्रू वी हैव टू फाइंड द V1 इन द सर्किट, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली स्पेसिफाई हुआ है कि हमने नोडल एनालिसिस ही लगाना है, सो हम इसको नोडल एनालिसिस से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ना होता, इसमें मेंशन ना होता, तो वी कैन अप्लाई एनी टेक्निक, बट स्टिल क्योंकि हम नोडल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, सो वी हैव टू अप्लाई द नोडल एनालिसिस इन दिस सर्किट। अब थोड़ा सा पहले हम सर्किट को रीशेप कर देते हैं, बिकॉज ये 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है। हमें पता है कि ये 2 किलो ओम के साथ कनेक्टेड है और यहाँ से इसका कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो हमने इसको थोड़ा सा रीशेप कर दिया। अब जो फर्स्ट थिंग है, we have to identify how much nodes are present in the circuit, और उसके बाद हर नोड को हमने एक वेरिएबल असाइन कर देना। Now we can clearly see कि इसमें एक तो हमारे पास ग्राउंड नोड है या रेफरेंस नोड है। ठीक है, अब इस रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट से हमारे पास ये 2 किलो ओम 1 मिली एम्पियर एक नोड के ऊपर कनेक्टेड है, और ये बाकी के सारे इस नोड पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो बिकॉज वी नो दैट नोड इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, इसमें हमारे पास एक नोड आ गई नोड 1 और यहाँ पे आ गई नोड 2। अब क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस द फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू डिफाइन नोडल वोल्टेजेस या वेरिएबल्स। तो हमने नोड 1 को जो है वो हमने V1 असाइन कर दिया और नोड 2 को हमने V2 असाइन कर दिया। तो ये हमने किसके रिस्पेक्ट से किया, ग्राउंड नोड के रिस्पेक्ट से। अब हमने करना क्या है, हर नोड के ऊपर हमने KCL अप्लाई करना है। तो अगर हम नोड 1 को देखें कि नोड 1 में हमारे पास KCL की मतलब ये है कि इसमें कितने करंट एंटर हो रहे हैं, कितने करंट इस नोड से एग्जिट कर रहे हैं। सो वी क्लियरली सी कि यहाँ पे 3 मिली एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो इस नोड से एग्जिट कर रहा है। सो ये तो हमारे पास क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये वोल्टेजेस के टर्म्स में है, तो हमने यहाँ से हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द करंट अक्रॉस इट, बिकॉज ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V is equals to IR, so I is equals to V by R। तो इस रेजिस्टर के पास वोल्टेज V1 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3 किलो है। सो वी कैन सी V1 by 3 किलो इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज प्रेजेंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर। और अगर हम इस 2 किलो ओम को देखें तो इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेजेस क्या आ रही है, इस नोड इधर इस पॉइंट पे नोड वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है। सो इस नोड पे जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V1 माइनस V2, दोनों का डिफरेंस। और अगेन हमने यहाँ पे करंट फाइंड करना है, सो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 किलो इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। अब हम इस पूरे नोड पे जब KCL अप्लाई करेंगे, सो दिस इज द करंट दैट इज present across this resistor, this is the amount of current that is present across this resistor, and this amount of current that is the value of a current source। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना है, हमने नोडल वोल्टेजेस जो भी हमारे पास रेजिस्टर्स हैं उनको हमने पोटेंशियल असाइन करनी है, पोलैरिटी से असाइन करना है। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। और क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट को ले रहे हैं, मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होकर नेगेटिव टर्मिनल पे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो भी इस नोड से, यहाँ पे करंट की वैल्यू डाउनवर्ड होगी। So this is V1 by 3 kilo ohm is the amount of current that is leaving through this node. 3 milliampere भी इस नोड में से लीव कर रहा है, and V1 minus V2 divided by 2 kilo ohm is actually the current that is leaving through this node, and this must be equals to 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे KCL अप्लाई कर लिया, तो V1 by 3 kilo ohm plus 3 milliampere plus V1 minus V2 divided by 2 kilo ohm is actually the total amount of current that is present across this node। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इज क्वाइट इजियर। यहाँ पे हम मैट्रिक्स टेक्निक नहीं निकाल रहे, हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं।
हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू कैन सी ये मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई है v1/3 प्लस v1/2 प्लस 3 माइनस v2/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन वो आ रही है 5v1 माइनस 3v2 इज इक्वल टू -18। ठीक है, ये एक नोट से जो हमारे पास एक एंड इक्वेशन आई है वो ये है। अब हमने दूसरी नोट को देखना है कि दूसरी नोट पे हमारे पास जो है वो उस पे भी हमने केसीएल अप्लाई करना है। तो अगर इस नोट पे हम केसीएल अप्लाई करें तो क्या होगा, 1 मिली एम्पियर इसमें से करंट एग्जिट कर रहा है, इस यहाँ से भी करंट एग्जिट कर रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ से करंट भी क्या हो रहा है, इस नोट पे एग्जिट करंट को अगर हम देखें तो वो V2 आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस, अब हम V2 माइनस V1। अब हम इसमें देखें तो इस नोड के क्रॉस जो करंट है वो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मिली एम्पियर। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V2 है इन सारी नोड्स के ऊपर, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स ब्रांचेस के क्रॉस। तो V2 बाई 2 एंड V2 बाई 2 हमारे पास यहाँ से जो है वो टोटल केसीएल की इक्वेशन आ जाएगी V2, सॉरी दिस इज केसीएल। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसमें हमने क्या करना है, 10 पावर 2 से 2 किलो से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो एंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है माइनस v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक हमारे पास इक्वेशन 1 है और एक हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, v1 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -18 3v2 -18 डिवाइडेड बाई 5 मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ रही है v1 से, इक्वेशन 1 से। अब इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ से जो v1 की वैल्यू है इसको मैं उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, तो मेरे पास जो v2 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो v2 की वैल्यू आ रही है -7/3 वोल्ट्स। और ये जो V2 की वैल्यू है इसको मैं उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली V1 की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज V1 is equals to -5 volt. So this is how we can solve the circuit nodal analysis by applying the nodal analysis technique। हमारे पास V1 भी आ गया, हमारे पास V2 की वैल्यू भी आ गई, हमें रिक्वायर्ड V1 था, so this is -5 volt। ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इट मींस की जो पोलैरिटीज थी हमारे पास, वो हमारे पास अपोजिट थी, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो करंट की डायरेक्शन है उसको अपोजिट होना चाहिए थी, इस वजह से माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, माइनस साइन जब पोटेंशियल में आ जाए इसका मतलब ये है कि हमने फिजिकली जब उस सर्किट को मेजर करेंगे तो उससे वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स का फर्क होगा और कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई है -5 वोल्ट। अब इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सर्किट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट सोर्सेस। अब तक हमने सर्किट के क्रॉस नोडल एनालिसिस टेक्निक अप्लाई की थी, जो कि हमारे पास जहां पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे। सो इफ द सर्किट्स हैव द डिपेंडेंट सोर्सेस इन द सर्किट, देन हाउ कैन वी फाइंड द नोडल वोल्टेजेस इन दैट सर्किट। So this is example 3.4 पेज 113 पे फाइंड द नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट। अब इसमें इसने क्या किया है कि नोड वोल्टेजेस दोनों आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं और हमने क्या किया, V1 और V2 की वैल्यू है। सर्किट में एक 4 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है 2 I नॉट का। व्हाइल वी नो दैट I नॉट हमारे पास है करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द 10 किलो ओम रेजिस्टर। अब इसमें नोड वोल्टेजेस आइडेंटिफाई की हुई विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड। ये हमारे पास ये जो होती है ये रेफरेंस नोड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिंपली नोडल एनालिसिस टेक्निक अप्लाई करनी है। यू नो दैट नोडल एनालिसिस टेक्निक इज अप्लाई केसीएल अक्रॉस ईच नोड। अब अगर हमारे पास दो नोड्स है तो दोनों के अक्रॉस हमने सिंपली केसीएल अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम V1 को देखें, इस नोड के क्रॉस देखें तो इसके क्रॉस जो है वो आई नॉट इस नोड में से एग्जिट कर रहा है। ये 10 किलो ओम के क्रॉस जो रेजिस्ट करंट होगा वो भी इसमें से एग्जिट कर रहा है, जबकि 4 मिली एम्पीयर इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल करंट आ जाएगा आई नॉट, वो हमारे पास V1 बाई 10 किलो ओम के इक्वल आएगा। यहाँ पे आ जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम, और 4 मिली एम्पीयर इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। सो इट शुड बी प्लस 4 मिली एम्पीयर, क्या हम इसको एक साइड पे लेके आए तो ये -4 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम नोड 2 की बात करें तो नोड 2 में हमारे पास जो करंट एंटर हो रहा है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 10 किलो ओम, 2 I नॉट भी इसमें से एग्जिट कर रहा है, और ये जो है वो हमारे पास V2 डिवाइडेड बाई 10 जो है ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 10 किलो में रही थी तो वो इसमें से एंटर कर रहा होता, लेकिन मैंने V2 माइनस V1 लिया तो वो इसमें से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। कि मेरे पास नोड 2 की भी मेरे पास जो केसीएल इक्वेशन आ गई, डिपेंडेंट सोर्स का जो पैरामीटर है वो हमें पता है I नॉट व्हिच इज इक्वल टू V1 बाई 10 किलो। ठीक है, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं 1 2 3। सिंपली मैंने क्या करना है कि जो I नॉट की वैल्यू है
इसमें से वो मैंने उठा के पुट कर देनी है इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि मेरे पास सारा के सारे नॉन पैरामीटर से V2 और V1 ही आ जाए, आई नॉट का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए। तो जब मैंने यहाँ से आई नॉट की वैल्यूज में पुट की तो मेरे पास जो V1 की वैल्यू हो गया वो -2V2 के इक्वल आ गई है। अब मैं इस इक्वेशन को किसी भी इसमें उठा के पुट करूँ तो मेरे पास जो है वो V1 की वैल्यूज आ गई। तो V1 इज इक्वल टू -2V2, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन 4 को जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी -8 वोल्ट्स, और क्योंकि वी नो दैट V1 इज इक्वल टू -2V2 तो यहाँ से हमारे पास जो है वो V1 की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमने दोनों वोल्टेजेस आइडेंटिफाई कर ली, V1 एंड V2। सो सी अगर हमारे पास सर्किट में इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं या डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, नोडल एनालिसिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन एनी सर्किट एंड वी कैन इजीली सॉल्व दैट सर्किट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज हैं या इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है द सर्किट कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हो उसमें हम नोडल एनालिसिस टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हमारे पास सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास सर्किट में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज आ गए हैं तो हाउ वी कैन सॉल्व दैट सर्किट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द नोडल एनालिसिस टेक्निक। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, इसी को जो है वो हमने थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके जाना है, बट उससे पहले द नोडल एनालिसिस टेक्निक मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, दैट्स व्हाई आपने इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स करनी है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपने वो मुझसे डिस्कस करना है। उसके बाद जो है वो हम इसको सुपर नोड का कॉन्सेप्ट पे और हाउ we can solve the circuit if the circuit would have a dependent or independent voltage source. So this is all for today. I hope you got the lecture. If you have any queries, you can discuss in the lecture. Till then, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।